السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا صبح کام تھا ایک مجھے پنڈی میں اور ایک لانگ ڈرائیو پہ جا رہی تھی تو سوچا ساتھ کچھ ریکارڈ کرتی چلوں، کچھ باتیں کرتی چلوں اور ساتھ ہی آپ کو خوبصورت سے سینز ویوز نظر آتے رہیں گے میرے راستے کے۔ میں سرائے عالمگیر سے اسلام آباد جا رہی ہوں اور سرائے عالمگیر کا جہلم کا راستہ، جہلم سے لے کے اسلام آباد کا آپ سارا ساتھ ویو کریں گے۔ دوستو میں جب آج کی عورت کو دیکھتی ہوں، کیونکہ پہلے کی عورت تو تھی مجبور لاچار، تو بلکہ اس کے نام سے یہ چیزیں منسوب تھی کہ عورت لاچار ہے، مجبور ہے، کوئی چیز اپنی نہیں ہے، نہ کچھ پیچھے اپنا ہے نہ آگے اپنا ہے، پیچھے سب کچھ بھائیوں کا، ماں باپ کا، آگے جو ہے شوہر کا، بچوں کا ہو جاتا ہے۔ تو عورت کی جو ہے نا معاشرے میں کوئی عزت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ عورت اتنی آج کی یہ عورت اتنی مجبور، اتنی لاچار کیوں نظر آتی ہے؟ وہ بھی اس زمانے میں جسے عورت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ عورت کا زمانہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں، کافی لوگ اس چیز کو نیگیٹو لے جاتے ہیں۔ عورت کا زمانے کا مراد یہی ہے کہ عورت میں شعور نام کی چیز آ گئی ہے۔ وہ زمانہ گیا جب آپ کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر آج کی عورت کے پاس بھی اپنا گھر بار، اپنی ذاتی جائیداد نہیں ہے تو پھر وہ سٹل اسی زمانے میں بیٹھی ہے جو زمانہ میرے ابو جی بتاتے ہوتے ہیں کہ میرے زمانے میں عورت کو، میں حقیقت پہ مبنی تھوڑی سی باتیں کروں گی، کافی لوگوں کو یہ کڑوی لگ جاتی ہیں، کافی لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے۔ میرا کوئی باتیں کڑوی کرنا یا کسی کی عزت مجروح کرنا یا کسی کو ریسپیکٹ دینا اور کسی کو ڈس ریسپیکٹ کرنا بالکل نہیں ہے۔ بس میں جب بھی نکلتی ہوں، سنتی ہوں، دیکھتی ہوں، معاشرے میں جاتی ہوں، عورتیں میرے پاس آتی ہیں، ان کو سنتی ہوں تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ آج کی عورت کے ساتھ بھی ظلم ہو رہے ہیں، آج کی عورت بھی بنا مطلب ڈائیورس لے رہی ہے، آج کی عورت بھی ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی، بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ اور ان عورتوں پہ خاص طور پہ جو عورتیں، وہ ان مردوں کو بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو اپنے ٹائم میں، جو ہمارے باپ ہیں، وہ مرد جو ہمارے والدین کہلاتے ہیں، ان میں ہمارے باپ ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ مین بیسک جو چیز ہے نا عورت کی بیس، وہ اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے، اگلے سسرال میں جا کے نہیں شروع ہوتی۔ تو جب ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی خاص طور پہ جو اعتراض کرتے ہیں عورت کے کسی ہنر سیکھنے پہ، عورت کی کسی مہارت سیکھنے پہ، عورت کا معاشرے میں سٹینڈ کرنے پہ، عورت کو معاشرے میں کچھ بننے پہ، ہمیشہ ہماری رکاوٹ بنتے ہیں ہماری بھائی اور باپ۔ وہ جب دیکھتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، آگے بھیجتے ہیں، اور ہمارے پہ جب مشکل ٹائم آتا ہے، جب ہم آگے جا کے ایڈجسٹ نہیں کر پاتی، تو ان کا دار و مدار ان پہ بھی ہے۔ اس لیے میں ان کو مخاطب کرنا چاہتی ہوں کہ آج کے اس مہنگائی کے زمانے میں جب آپ کی عورت پہ، آپ کی بچی پہ، آپ کی بیوی پہ، آپ کی بیٹی پہ، آپ کی بہن پہ جب مشکل ٹائم آتا ہے اور وہ پھر لوگوں کے گھروں میں 5,000 پہ کام کرتی ہے یا 5,000 کا کام ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، تب بھی تو وہ عورت ہی ہوتی ہے نا۔ تب بھی تو جو اس پہ مشکل ٹائم آتا ہے وہ بیچاری بہت گھر سے بھی نکلتی ہے اور بہت بہت کم پیسوں پہ، بہت کم، اتنے کم کہ جس پہ اس کا مہینے کا تو کیا ہفتے کا گزارا بھی مشکل سے ہو سکے، اتنے پہ بھی پھر وہ منتھلی ماہانہ کام کرتی ہے۔ تو ایسا کیوں؟ پہلے کیوں نہیں سکھایا گیا؟ عورت کیوں نہیں معاشرے میں سٹینڈ کرنا سکھایا جاتا؟ عورت کو کیوں نہیں معاشرے میں جو ہے نا یہ ظالم دنیا کی حقیقتیں بتائی جاتی؟ مرد کو تو اس لیے پتہ ہوتی ہے نا کہ وہ گھر سے بچپن سے نکل جاتے ہیں، چھوٹی عمر میں ہی نا مرد گھر سے نکل جاتا ہے، اسے پتہ ہے باہر کس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح کا معاشرہ ہے، کس طرح کی دو نمبری ہے، کس طرح کی ہر چیز انہیں سمجھ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچپن سے باہر نکل کے سنبھلے ہوتے ہیں، سمجھے ہوتے ہیں۔ جیسے ہر ہنر سیکھنے پہ ہی سمجھ آتا ہے، ایسے یہ معاشرہ بھی ہے، اس میں نکلنے سے سمجھ آتا ہے۔ تو عورت کو شروع سے اندر ڈک کے رکھا جاتا ہے، عورت کو اندر قید کیا جاتا ہے، شروع سے ایسے رکھا جاتا ہے، پھر اس کو کیسے معاشرے کی سمجھ آئے؟ وہ اندر رہتی ہے۔
تو खुदारा अपनी औरतों को, अपनी बेटियों को, माँओं को, बहनों को हर एक स्टेप वैसे ही सिखाएं जैसे आपने सीखा हुआ है। मुश्किल टाइम आ सकता है, अगर आज किसी का वालिद, किसी का भाई, किसी का शौहर महीने का 8-10 लाख कमाता है, तो वो कमाता है। जब तक आप अपनी बहन, बीवी, बेटी के साथ हैं, तब तक ही उसे दे सकते हैं। क्या पता आप ऐसे घर में शादी कर दें, जहाँ पे उसके पास इतना ज़्यादा ना हो और उसका मर्द खुददार हो, कहे कि अपना है तो बस अपना है, माँ-बाप का या भाई का नहीं लेना। तुम्हें कुछ आता है तो तुम कर सकती हो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, और औरत के पास हुनर ना हो, वो गुर्बत की ज़िंदगी गुज़ारे। सबसे बड़ी बात ये भी ज़िंदगी चलो एक्सेप्टेबल है, गुर्बत की ज़िंदगी भी। शोहर छत पे हो, अपने सर पे हो, उसका साया सर पे हो, तो सब कुछ एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर कोई हारी-बीमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, अगर ज़िंदगी में एक औरत के ये आ जाती है, आपकी बेटी, बीवी, बहन की ज़िंदगी में अगर कोई हारी बीमारी आ जाती है, उसके शौहर को उसका साथ छोड़ना पड़ जाता है, वक़्ती या हमेशा के लिए, तो वो क्या करे? और उस टाइम अगर उसके सर पे उसके साथ 2 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, 5 बच्चे हों, वो क्या करे? ऑफ़ कोर्स जब आपने उसको हुनर नहीं दिया, तालीम नहीं दी, उद-बुद नहीं सिखाया, माशरे का अच्छा-बुरा नहीं सिखाया, तो वो जो लोग घर में जाके 5-5 हज़ार पे नौकरी करेगी, काम करेगी, किसी बैंक के बाहर लगेगी, किसी हॉस्पिटल के अंदर लगेगी, कहीं जाके चाय बनाएगी, कहीं कुछ ना कुछ 100 काम है 5, 10, 8 हज़ार के जो वो करेगी, और फिर वो शिकार होगी उसी माशरे का जिसको आपने ना सिखाकर अपनी तरफ से एहसान किया कि हमने तुम्हें माशरे में नहीं भेजा, हमने तुम्हें इस दरिंदगी में नहीं भेजा, हमने तुम्हें बुरे लोगों में नहीं भेजा। तो ये आप गलत कर रहे हैं भाई, भेजे ना, सिखाए ना। अपने साथ हाथ में हाथ डाल के अपने बेटी के साथ कंधे से कंधा मिला के उसको सिखाएं, अपनी बहन को, बीवी को इस माशरे की हकीकत सिखाएं, ताकि कल अगर उस पे पड़े तो उसको ये एहसान लगे, इतना बड़ा जिंदगी का एहसान लगे कि मुझे सिखाया गया है, मुझे आता है अब इस माशरे में सर्वाइव करना। अगर एक औरत का शौहर बाहर होता है, तब भी तो उसे माशरे से लड़ना पड़ता है, तब भी तो उसे बच्चे खुद ही स्कूल छोड़ने पड़ते हैं, बच्चों की गाड़ी वाले अगर लगवाए हैं उसी से खुद ही डील करना पड़ता है, स्कूल वालों से जाके खुद ही डील करना पड़ता है, सब्जी खुद ही लानी होती है। जिंदगी के, माशरे के, घर के 100 काम है जो उसको खुद ही करने पड़ते हैं। कोई भी साथ नहीं दे रहा होता उस टाइम ना बुजुर्ग बाप साथ होता है, ना वो भाई, जिनकी अपनी शादियां होके, अपने बच्चे होके जिंदगी अलग से सेट हो जाती है, और बाद में बहनों के लिए कितना टाइम होता है? नहीं टाइम होता। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें। अब मैं आ जाती हूँ उन औरतों पे जो कि खुद भी ज़िंदगी में लेज़ी हैं, कुछ सीखना नहीं चाहती, कुछ बनना नहीं चाहती, बस मिल रहा है, खा रही हैं बाप का, शौहर का, भाइयों का, और ज़िंदगी में कोई आगे बढ़ने की सोच नहीं है, कुछ बनने की सोच नहीं है, कोई हुनर सीखने की सोच नहीं है। ऐसी औरतों को जब खामद लगा दे, या खामद अपनी थोड़ी-सी गुजारादारी जमा ले, फिर आ जाती हैं नाराज़ होके घर, या फिर आ जाती हैं डाइवोर्स लेके, फिर आ जाती है बड़े-बड़े मसले, बड़े-बड़े मसाइल क्रिएट करके, सीखा खुद नहीं, बनी खुद कुछ नहीं। अगर वो आपको सिर्फ़ दे रहा है, आपका हस्बैंड, आपके सारी टोटल खर्च दे रहा है, और आपकी ये औकात है जिसमें आप टोटल ले रही हैं, तो उसने अपने नाज़ नखरे, गुस्सा तो दिखाना है। ज़ाहिर है आप ठूँस रही हैं, वो कमाता जा रहा है, या तो बराबर का हिस्सा बनें, अपना हिस्सा डालें, अपने हर अच्छे बुरे वक़्त में अपने शौहर और बच्चों का साथ देने के लिए ये फ़ज़ूल कारियाँ छोड़ें और कोई ना कोई हुनर सीखें, आगे बढ़ें। कभी आपने सोचा है कि घर में अगर सिर्फ़ आपका एक शौहर कमाता है, आप और बच्चे सिर्फ़ खाते हैं, तो 3 माह के लिए किसी बुखार से भी शौहर बेचारा अगर घर बैठ जाए, सब कुछ छोड़-छाड़ के, तो आपकी अपनी तबीयत खराब हो जाती है। आपको वही चॉकलेटी शौहर, खामद भी ज़हर लगने लगता है, क्योंकि अब घर में फ्री बैठा है। घर में फिर वो लाख छोटे-मोटे काम करवाए आपके साथ, आपको वो नज़र नहीं आते, ना अच्छे लगते हैं। आपको बस ये होता है कि खुशियाँ पैसों से आती हैं, ये घर में बैठे हुए हैं, सब पैसा उसी तरह नहीं आ रहा। तो कभी सेम यही रोल आपने खुद पे सोचा है कि आप लाख छोटे-मोटे घर घर के काम करवा के काउंट करवाती हैं, जो करवाती रहेंगी,
उसे भी फिर कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। वो हमेशा फिर आपको यही कहेगा ना, जब जब आप ज़ुबान खोलेंगी या अपने हक के लिए बोलेंगी कि ज़्यादा ज़ुबान ना चलाओ, अभी निकाल के कोई खाना बनाने वाली, झाड़ू पोंछे वाली 5 से 8,000 रुपए ले आऊँगा। मतलब वो आपके काम को क्या वैल्यू देता है? या सब जितने लोग हैं सब मुआशरे वाले आपके वैल्यू को जो आपके काम को क्या वैल्यू देते हैं? आप खुद देख लें और सोच लें कि आपको ज़िंदगी में इसलिए तो नहीं ना आया, मतलब ज़िंदगी आपको इसलिए तो नहीं मिली कि सारी ज़िंदगी वैल्यूलेस होके गुज़ार देनी है। अपनी वैल्यू को पहचानें, अपना रोल अदा करें, अपने आप को जानें और कोई हुनर सीखें, कोई ऐसा हुनर जिससे आपको पहचान मिल सके, इस दुनिया में आने का मकसद पूरा हो सके, आपकी सैटिस्फाइड और हैप्पी लाइफ गुजार सकें, हो सके। मजबूर और लाचार नज़र ना आएँ। ये मजबूर और लाचार ज़िंदगी आपने खुद चूज़ की हुई है। आपकी अपनी गलतियाँ हैं ये सब, आप खुद ज़िंदगी को जो कि एक बार मिली है, ज़िंदगी समझ के नहीं गुज़ारना चाहती। औरत क्यों क्यों नाकाम है ये भी बताती चलूँ कि ज़्यादातर औरतें तो अपनी फैमिली रिस्ट्रिक्शन की वज़ह से, फैमिली की पाबंदियों की वज़ह से बाहर निकलती नहीं हैं, जिसमें 70% औरतें आ जाती हैं। 30% जो निकलती हैं, उनमें से 20% जो हैं वो अपनी गलतियों की वज़ह से नाकाम हो जाती हैं। और बाकी जो 10% है जो बेचारी कामयाब रहती हैं, टॉप पे हैं आजकल, उनका भी जीना हराम कर देती हैं। और जो लड़कियां निकलना चाहती हैं बाहर, उनके लिए भी मुश्किल क्रिएट करती हैं। ये 20% औरतें जो 100 में से 70 तो निकलती नहीं है, 20% जो अपनी गलतियों की वजह से नाकाम होती हैं, वो भी सुन लें कि वो जो है ना अपना आप, अपना घर बार, अपना मुकाम भूल जाती हैं। वो ये भूल जाती हैं कि मैं कहाँ से आई हूँ और क्या हूँ। वो बाहर निकल के अपने आप को पता नहीं क्या समझना शुरू कर देती है। वो से चक्करों में पड़ जाती हैं जिनमें से टॉप जो है उनके अफेयर्स हैं, उनके करेक्टर्स हैं जो कि मर्दों के कामों में पड़ जाती हैं। जिंदगी में आप जिधर जिधर जाएंगे हर चीज आपको अट्रैक्ट करती है, चाहे वो चीजें हैं, लोग हैं। लेकिन अपना एम्बिशन, अपना मकसद एक रखें, अपना गोल एक रखें, अपनी कामयाबी को माइंड में रखें, अपना जो काम सीखने के लिए हुनर निकली है उसको माइंड में रखें, उसमें टॉप करने की कोशिश करें। आप चली जाती हैं अफेयर्स में, आप चली जाती हैं दूसरे कामों में, गलत कामों में, आप शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देती हैं। आपको वैसे तो ज़िंदगी में टाइम नहीं मिलता और जब टाइम मिलता है तो आप पता नहीं क्या समझती हैं अपने आप को, मैं आ गई हूँ बाहर, मैं तो महारानी साहिबा पता नहीं क्या कुछ बन गई हूँ। 10, 15, 20,000, 40,000 कमाने के काबिल नहीं होती हैं और आप अपने आप को 2 सूट लेके पहन के टशन-मशन में, एक तो सारा पैसा टशन में उड़ा देती हैं, ये भी आपकी गलतियाँ हैं कि सारा जो है अपना पैसा ज़ाया कर देती हैं अपने फैशन में। हो हमेशा चादर देख के पाँव फैलाएँ और सेविंग की तरफ आएँ। और अपने अफेयर्स को पीछे रखें। जिंदगी में कुछ बनने के लिए, कुछ टॉप करने के लिए सोचें। घर वाले एतबार करके आपको इजाजत देते हैं बाहर निकलने की, कुछ करने की, अपना आप मनवाने की, अपने ख्वाब पूरे करने की, तो खुदारा आप बाहर निकल के सब कुछ भूल जाती हैं। इसको माइंड में रखें। आप बाहर निकल के घर वालों को इग्नोर करना शुरू कर देती हैं, उनके असूलों को, रूल्स को, उनके फैसले इग्नोर करना शुरू कर देती हैं, खुद को पता नहीं क्या समझना शुरू कर देती हैं। मेरा मानना है जो इंसान अपनी ओरिजिन नहीं भूलता, वही माशरे में अपना मकाम पाने में कामयाब होता है। जो अपनी शनाख्त नहीं भूलता कि मैं क्या हूं, कहां से आया हूं, वही कामयाब होता है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की बातें, आज की जो मेरी गुफ्तगू है एक लॉन्ग ड्राइव की, साथ तो मैं भूल ही गई कि रास्ते में कौन-कौन सी सिनरियाँ आई, कौन-कौन से नज़ारे आए, कौन-कौन सा शहर गुज़रा। साथ-साथ थोड़े और टैग लगा दूँगी। तो खुदारा अपना जो फीमेल्स हैं, यंग बच्चियाँ हैं, जो भी मेरी इस गुफ्तगू को सुनेंगी, मेरी इस छोटी-सी जो है ना टॉक को समझेंगी, मेरी बातों को सुनेंगी, समझेंगी, उनको मेरी छोटी-सी इल्तिजा है कि ज़रा अकेले कमरे में हैंड फ्री या ब्लूटूथ लगा के, आँखें बंद करके मेरी गुफ्तगू को सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने इसमें क्लियर की है आज की औरत, जो आज की बच्चियाँ बाहर निकल के अपना आप भूल जाती हैं, उनके लिए और उन लोगों के लिए जो औरतें कुछ करती नहीं हैं, कुछ बनती नहीं हैं, सबके लिए छोटी-छोटी बात की है।
اور समझाने की कोशिश की है कि हम औरतों को फालतू नहीं बैठना चाहिए, फ़ज़ूल नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ बनना चाहिए। औरत का भी उतना ही हक है आगे बढ़ने का, सीखने का जितना कि मर्द का। औरत के भी वही राइट्स हैं, औरत की भी वही नीड्स हैं, वही ज़रूरियात हैं। औरत भी इंसान है जीती जागती। जैसे एक मर्द पैदा होता है वैसे एक औरत पैदा होती है, जैसे मर्द की ख्वाहिशात हैं, ख्वाब हैं उसके, वैसे ही औरत की ख्वाब और ख्वाहिशात हैं। औरत भी चाहती है मेरा घर हो, मेरी गाड़ी हो, मेरे घर में मेरे कमरे में एसी लगा हो, मुझे हर सहूलत मिले, मेरे बच्चों को हर सहूलत मिले। तो ये सब कुछ तभी हो सकता है जब आप अपने घर वालों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाती हैं, सिर्फ़ उनको माइंड में लेके चलती हैं, इधर-उधर की रुकावटों को माइंड से निकाल देती हैं। आपके आगे जो भी रुकावट आती है उसको फ़ेस करती हैं, बल्कि औरत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। औरत जब बेबी बर्थ करती है, औरत एक माँ बनती है, तो औरत के तो पाँव तले जन्नत है सिर्फ़ उस माँ बनने की वज़ह से। तो औरत को बहुत बड़ा मुकाम हासिल है। वो जो इतनी बड़ी तकलीफ़ बियर करती है, तो ये छोटी-मोटी माशरे की तकलीफ़ें उसको इतना तंग नहीं कर सकती, इतना उसके लिए परेशानी का सबब नहीं बन सकती अगर वो इस माशरे को जीना सीख ले। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की गुफ्तगू पसंद आई होगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। लास्ट अपने नज़ारे आपको दिखा रही हूँ और कुछ अच्छा लगे तो कमेंट्स में बताइएगा, कुछ बुरा लगे तब भी बता दीजिएगा। अच्छा-बुरा मुझे तो दोनों सुनने की और समझने की आदत है और कुछ सिखाना चाहें वो भी बताएँ। इंसान की सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती। जो है ना उसे सीखते रहना चाहिए ज़िंदगी में और कभी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। चलें जी, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।